Hello everyone, I, Alka, welcomes you on a very exciting story of Success Stories talk show presented by Trident Communications. And I'm very excited today as we have our very special guest, Vidya R. Hazarness, and she's one hell of an interesting person. So let's begin the show. So Vidya ji is a consultant, a numerologist, and a graphologist. So let's welcome Vidya ji. Hello Vidya ji, how are you? Namaskaram Alka ji, thank you so much for calling me on this wonderful show. And मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? All good here. All good, very nice. So Vidya ji, as we know a lot of things about you already, that you do quite a lot of things. So would you like to tell us about yourself and what exactly do you do? Okay, I'm Vidya Hajinis and I'm a Vastu consultant, master numerologist. That is predictive numerology also I do, and as well as normal low sugar Chinese numerology also I do. So apart from this, I'm a graphologist, that is handwriting and signature expert. We can analyze the handwriting and signature based on the date of birth. So I combine all these modalities, all these spiritual modalities, and it's actually a science. So this is what I do right now, and maybe later I can add few more modalities as per divine's grace, and timing. So yeah, this is me. I'm quite excited to be on the show with you today because even I believe a lot in Vastu and numerology and Oh, so nice. astrology. Oh, that's So really yeah, nice. we could And like really connect after this interview. yes, definitely. I would actually, on air, I would like to say that I would like to do a numerology thing for you and with you, as well as I would like to do something about your signature and graphotherapy for you. See, क्या होता है ना? Everyone has strengths and weaknesses. सबके पास ह्यूमन इज बॉर्न ओके एक इंसान के पास दोनों होता है, स्ट्रेंथ भी होता है, वीकनेस भी होता है. सो ग्राफोथेरेपी आई वुड से जस्ट टू स्टार्ट विद ग्राफोलॉजी. सो ये क्या होती है, हैंड राइटिंग जो होती है अपनी, ओके, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर माइंड. it's a brain writing sort of a thing. So whatever it is, the state of mind जो आज की तारीख में जो आपका जो current state of mind है, that has been written, that you can put on paper. एंड वो जो फॉर्मेशंस होते हैं विद योर हैंड राइटिंग, आपने देखा होगा जैसे अपना जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, दीज आर यूनिक. लाइकवाइज अपना जो सिग्नेचर होता है, हैंड राइटिंग होता है ना, दीज आर ऑल यूनिक. I cannot, yours and mine will be totally different. एकदम unique रहेगा. So this is actually based on your state of mind and your kind of formation of letters and words, baseline. बहुत कुछ सारी चीजें होती है जो analysis हम लोग करते हैं. So I would really like to do it for you as well, and it's fun. मतलब it's actually a science. You read a person like a book. And you will definitely be amazed. अरे ये तो मुझे पता था लेकिन ये नहीं, I was, क्या होता है ना, हम accept नहीं करते. See, most of the thing I generally tell people, on even my clients, that you should know your weaknesses, and first of all you should accept your weaknesses. So एक बार हम aware हो जाते हैं कि these, okay, ठीक है, these are my weaknesses. Like I'll tell you about my weakness. एक सबसे बड़ी weakness ये थी as in, हाँ, थोड़ा I'm still working on it, क्योंकि बचपन से है ना, and I'm born with it, right? तो sorry, it takes time. So my weakness is I'm very short tempered. Okay. नाक पे कहते हैं ना गुस्सा, एकदम instant reaction करती थी. I was always used to react every time, whatever situation is, good, bad, whatever, जो भी है, instant reaction. And that was my biggest problem in life, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी चीजें है ना टूट सी जाती है. Lot of good things might happen with your, the way you handle a situation. अभी आप फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन दिस, अभी तो ग्राफोलॉजी तो रिसेंटली आई गॉट अवेयर ऑफ दिस साइंस एंड मैं कर पाई है. और अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम लोग एंगर मैनेजमेंट करते हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड सिंस आई एम स्पिरिचुअल, सो मैं ज्यादा करके मंदिर जाया करती थी, बिकॉज आई न्यू दैट मंदिर भी एक साइंटिफिक स्पेस होता है जहाँ पे यू एक्चुअली बिकम काम. सो I used to, once upon a time, I used to go मंदिर, like daily जाया करती थी.
मंदिर की घंटी एंड वो स्पेस जो होता था, वाइब्रेशंस होते थे, इट यूज्ड टू काम मी. तो ये सारी मेरी वीकनेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माय वीकनेस एंड हाउ आई ग्रू अप, यू नो, हाउ आई मेड दिस वीकनेस इनटू माय स्ट्रेंथ. नाउ मैंने क्या किया, फिर आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग rather than reacting to situations. मैं I took pauses, शांत बैठ के कामली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड, क्या प्रॉब्लम क्या है, सो जस्ट रिस्पॉन्ड. सो ये जो चेंज हुआ है ना, it I would say definitely I would put a word like transformation. So मेरा जो transformation हुआ है, anger part, see people think कि अरे गुस्सा तो सबके पास है, सब लोग गुस्सा होते हैं, but how you manage it, it's kind of a skill I would say जो develop होते हैं from you know, develop होते रहते हैं from time to time. So this is what the graphology is. Graphology आपको आपका weaknesses बताते हैं, आपके strength भी बताते हैं, where you कहाँ पे अगर आप रुके रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिजनेसेस में भी कैसे है ना, जो बिजनेस चलाते हैं या जॉब में रहते हैं, करियर वाइज होता है, 90% यू नो 90% काम होते ही 10% समवेयर डाउन द लाइन निकल जाता है काम, यू नो, वो पूरा नहीं होता है, कुछ डिले होता है, some or the other thing comes. So graphology actually helps you to understand why this is happening, you know, and it shows in your handwriting clearly. Like a book, it shows in your handwriting. So, or one more thing, it is signature. Signature is something that you want to show it to the world. Handwriting is something that you are as a person. You know, your personality, your attributes, and like signature, आपका आप दुनिया को दिखाना चाहते हो. So, it's a wonderful science. मतलब psychologically बहुत मजा आता है समझने के लिए. And you can actually do a reverse psychology in the name of graphotherapy. It's a therapy, and जैसे it takes time, 21 days to 3 months for a person. So ये therapy करेंगे, you actually create a personality trait that you want for success. So this is wonderful science. So it's all about graphology. And I think अलका जी मैंने काफी कुछ कह दिया. Yeah. Okay. So Vidya ji, now that you told us something about yourself and the kind of person you are and the things that you do, so you know, this is a very unconventional career path that you have taken up. So would you like to share your journey of your profession with us? Yes. Thank you for this wonderful question. क्योंकि अभी लोग मुझे जानते हैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट, ग्राफोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, पर मेरी कहानी मैं उनको एक्चुअली बताना चाहूंगी कि हाउ आई गॉट इनटू दिस मोडालिटी. आई एम अ ग्रेजुएट, बीकॉम ग्रेजुएट, एंड मैं आई वाज एन एचआर फॉर मेनी इयर्स, लाइक अराउंड 10 years. सो बीइंग एन एचआर पर्सन, क्या होता था कि इंटरव्यूज हम लोग लेते हैं, राइट, एंड बचपन से मुझे स्पिरिचुअल, आई वाज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यू नो, क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मंदिर क्या होता है रिसर्च करती रहती थी. एंड सिंस आई वाज कमिंग, यू नो, आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से ही मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे दादाजी से ही मुझे मिला है. सो इट्स रियली, कहती है ना, मैं मन पीस, अगर मुझे आई वांटेड टू बिकम काम, तो मैं मंदिर जाया करती थी rather than going anywhere else. So this is what मेरा पाथ पहले से ही भगवान ने मेरे लिए, यू नो, पाथ चुना हुआ ही था. जस्ट मैं उसमें एक स्टेप लेना चाहिए था मुझे. तो इट वाज एज अ जर्नी. कैसे हुआ कि एचआर, जैसे आई वाज टेलिंग यू अबाउट इट, दैट काफी इंटरव्यूज होते थे, काफी लोग आया करते थे. तो उनका डेट ऑफ बर्थ होता था, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ उनका, यू नो, हम इंटरव्यू करते वक्त मिलते थे उनसे कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसी बात करते हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू ऑब्जर्व. आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन राइट फ्रॉम बिगिनिंग. तो ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ, मुझे बाद में समझा कि दिस इज एक्चुअली माय स्ट्रेंथ. सो उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता था. एंड मैं पहले ज़ोडिएक साइंस बहुत पढ़ा करती थी, लाइक यू नो, मैगजीन्स में आते थे, न्यूज़पेपर्स में आते थे. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज रीड ऑल दिस ज़ोडिएक साइंस, और बाद में पर्सनैलिटी समझने की कोशिश करती थी. जब डेट ऑफ बर्थ मिलता था, बाद में मैं नोट करती थी, हाँ ये इंसान को मैं ऑब्जर्व करूंगी, यू नो, अप्रेजल तो मेरे पास ही आएंगे उन लोग. सो थ्रू आउट द ईयर आई हैड टू, दिस इज माई वर्क, राइट, ये मेरा काम ही था बीइंग एन एचआर. सो उनको मैं अच्छे से ऑब्जर्व किया करती थी. आई यूज्ड टू, यू नो, shortlist some people depending on the zodiac sign. So this is what I've been doing since many years. उसके बाद I understood there is something that, you know, दो zodiac signs same नहीं होते.
मतलब फॉर एग्जाम्पल सेम सॉरी आई एम टू से इज एक zodiac sign, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एक्वेरियन, सो अनदर एक्वेरियन पर्सन विल नॉट मैच टू मी, उनका पर्सनैलिटी डिफरेंट रहेगा. सो आई यूज्ड टू फील दैट though he or she is an Aquarian like me, but उनका काफी different personality traits है, attributes है, characteristics है. So ये सारी चीज मुझे थोड़ा सा mystery, mysterious feel होने लगा. So then I understood कि there is something called as numerology, that is अंक शास्त्र. तो मैं I started reading numerology books वगैरह, गूगल किया, फिर then learned this numerology. then जैसे जैसे सीखने लगी वैसे वैसे और अंदर you go deep inside you, होता है ना, like curiosity होती है कि और क्या और क्या हम जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, और क्या बेनिफिट हो सकता है. like everyone likes to do something, कुछ तो ये अकल साइंस से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले तो you like it, everyone is interested to know about oneself. तो न्यूमरोलॉजी से मुझे समझा कि नंबर्स भी होते हैं along with the zodiac sign, कुंडली होती है, like your destiny is real. I actually want to say, जैसे कहते हैं ना कि हम खुद की डेस्टिनी बनाते हैं, एक्चुअली वो आपकी दशा चेंज होती है, आपका फेवरेबल प्लैनेटरी पोजीशन से होती है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा वर्क करता है बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी जो भी अपने, और एज वेल एज अपने जो पितृ होते हैं, जो अपने दादी जी सॉरी एंड अपने पितृ होते हैं एंड पूर्वज होते हैं, माता पिता होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, उनकी भी ब्लेसिंग्स काफी काम होती है. अब ये सारी ब्लेसिंग्स क्या करती है ना, आपके ऑब्स्टेकल्स को कम करती है, इंटेंसिटी को कम करती है. आई जस्ट कनेक्ट दिस थिंग विद आई एम, मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी कहा, कुंडली का, आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दिस हाउ आई गॉट इनटू इट. तो न्यूमरोलॉजी जब मैंने समझा, बाद में कुंडली और न्यूमरोलॉजी में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि लोग तो एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, देयर इज नो वन लाइक न्यूमरोलॉजिस्ट. तभी की बात कर रही हूँ, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 के आसपास, 2005 के आसपास की बात कर रही हूँ. तो काफी कम लोग ये साइंस से वाकिफ थे. तो आई रियली गॉट लकी टू गेट इंट्रोड्यूस टू दिस साइंस एंड मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी. तो मुझे एक बात समझा, जो सब लोग कहते थे कि मैं अपना डेस्टिनी मैं खुद बनाऊंगा, लाइक माय यंगर ब्रदर हिमसेल्फ सेज दिस, अभी भी वही कहते हैं. सो मैंने बोला गुड, आपकी दशा चेंज हो रही है इसलिए यू आर थिंकिंग दैट वे, आपका थॉट प्रोसेस काफी अच्छा हो रहा है. सो जो भी रंग से राजा बनते हैं ना, वो उनको कुंडली भी, प्लैनेट्स भी साथ देती है, प्लस उनकी दशाएं भी साथ देती है. सो इट्स ओवरऑल ओवरऑल एवरी पर्सन हैज, वो 7.5 कहते हैं ना हम, 7.5 हर इंसान में वो कुंडली के हिसाब से आती है. यू बीट फ्रॉम एनी रिलीजन, कौन से भी धर्म को आप मानो नहीं मानो, इट डिपेंड्स ऑन यू. सॉरी, पर ये चीजें होती है, दिस साइंस एग्जिस्ट. ओके, एंड न्यूमरोलॉजी को फिर मैंने कनेक्ट किया, लाइक अपना नाम होता है जो अपने माता पिता हमें नाम देते हैं, तो वो नाम फेवरेबल है या अनफेवरेबल फॉर अस, क्योंकि माता पिता तो स्पेलिंग वगैरह देख के थोड़ी ना देंगे, उनको जो दिल से अच्छा लगा और जो प्यार से उन लोग सिलेक्ट करके रखते हैं कि हाँ बेटा होगा तो ये नाम देंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे हम. तो एक प्यार के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ वो नाम रहता है. पर उसके बाद पर नाम में भी काफी डिफरेंसेस आए. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल टू यू एज वेल. सो हाउ न्यूमरोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, बोथ कुंडली भी इम्पोर्टेंट है, हाउ न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लाइक वो नंबर्स जो हमें फेवरेबल अनफेवरेबल नंबर्स होते हैं, वैसे ही नाम में भी एवरी स्पेलिंग हैज वाइब्रेशंस, एवरी नंबर हैज वाइब्रेशंस. सो ये जो स्पेलिंग जो बात होती है ना, तो अपना नाम अपने कुंडली के हिसाब से, अपने न्यूमरोलॉजी जो नंबर है उसके हिसाब से होना बहुत जरूरी होता है. दो आई बिलीव दैट अपने माता पिता ने जो हमें नाम दिया वही अच्छा है, पर यस इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं ना, वो अपने, अगर बाई चांस किसी का नाम प्रॉपर नहीं है अकॉर्डिंग टू द बर्थ डिटेल्स, तो उन्हें लाइफ लॉन्ग तक सक्सेस मिलेंगी, नो डाउट, बट साथ ही साथ बहुत ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा, डिलेज रहेगा. सो व्हाई वी वांट ऑल दिस? सक्सेस चाहिए तो लेट्स हैव अ स्मूथ थिंग ना, मतलब एक थोड़ा सा इंटेंसिटी तो कम ही कर सकते, एटलीस्ट इंटेंसिटी कम कर सकते, पेन या स्ट्रगल का थोड़ा सा कम कर सकते. तो दीज आर ऑल सपोर्टिव थिंग्स जो हम साथ करते हैं, लाइक माइंड पे वर्क करना, ब्रेन, लाइक हैंडराइटिंग प्लस न्यूमरोलॉजी, थोड़ी वाइब्रेशंस. अच्छा ये डेट अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डिटेल, ये डेट पे आप
have your important you know I would say meetings कहें या important functions कहें, तो डेट क्यों मायने रखती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है. सो दीज ऑल ये फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंबाइंड एक अकल साइंस में कहते हैं ना, कंबाइंड एक सपोर्टिव एलिमेंट होता है, ये सपोर्टिव थिंग होता है. प्लस वास्तु, आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू अबाउट वास्तु. So before that, I just complete this topic of कुंडली एंड न्यूमरोलॉजी. सो मेरी जर्नी होती गई लाइक फिर बाद में मैंने ये न्यूमरोलॉजी अपनी लाइफ में अप्लाई किया. कुंडली तो थोड़ा बहुत बेसिक मैं करती थी, तो ये मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए अप्लाई किया. आई टू डू देयर नेम करेक्शंस एंड ऑल. तो उनको फायदा होने लगा. आई वाज लाइक ओके, दिस इज गुड, ये अच्छी बातें हो रही है. पीपल आर कमिंग टू मी एंड मेरा करो, तो एक कहते ना इम्पोर्टेंस एंड अटेंशन मिलता है. So I used to like this feeling कि हाँ मेरी वजह से कुछ मेरी नॉलेज की वजह से someone is getting benefited. So एक पुण्य का काम होता है ना sort of. तो वो एक फीलिंग अच्छी आती है कि कर्मा अच्छा कर रहे. तो ये any person, I 100% believe in karma. So if you do good karma, you will actually get a good benefit out of it. It's not about benefit, but yes, एक मन को शांति भी मिलती, हम अच्छे हैं, वैसे ना कुछ गलत नहीं कर रहे, ये एक अच्छी. सो ये सारी चीजें होने लगी. तो आफ्टर HR, व्हेन आई गॉट मैरिड, तो फिर आई गॉट इनटू बिजनेस. फिर मैंने अपना बिजनेस के मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये अप्लाई किया, बिजनेस में अप्लाई किया. मैंने बोला वाओ, लाइक न्यूमरोलॉजी एक्चुअली बिजनेस में भी वर्क करता है. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 की बात कर रही हूँ. सो आई गॉट more and more interested in this, and मुझे लगा कि this is my passion. I understood totally that this is my passion. लेकिन मुझे ये नहीं पता था that this would be my profession. So I actually got lucky to understand one thing about कि numerology है, चलो कुंडली है. क्या हुआ, I mean I'll just continue with this कि सब कुछ करने के बाद लाइक न्यूमरोलॉजी किया, बिजनेस में सब कुछ किया, तो वी वर एक्चुअली ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. माय हस्बैंड वाज लाइक अरे ये क्या है ना, दिस इज लाइक अ मिरेकल, लाइक मे बी शादी के बाद यू गॉट इनटू माय लाइफ इसलिए हुआ. आई वाज लाइक लेट्स सी, कुड बी हम लोग दोनों कनेक्ट हुए, मिलना था, वेरी वेरी गुड. सो ये कहते हैं ना हम लोग वी लाइक टू गो इनटू अ बिगर हाउस. सो देन चलो अभी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हम लोग बढ़ाने की कोशिश, लेट्स डू इट. सो काफी अच्छा माहौल हो रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस चला, गुड फाइनेंशियल पोजीशन, पीपल वर नोइंग अस एंड इज्जत हो रही थी, काफी अच्छे लेवल पे हो रहा था. देन वी गॉट इनटू अ डिफरेंट हाउस, मूव्ड इनटू अ डिफरेंट हाउस, बिगर हाउस. within 2 years we were feeling that हम लोग सोने की चिड़िया, सोने का कहते हैं ना, सोने की पिंजरा जो होता है, सोने का पिंजरा, उसमें हम लोग पैक्ड है. इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, लेकिन there were lot of issues, luckily husband wife में कोई issue नहीं हुए, ना ही मेरे father in law के साथ. we were good, लेकिन there were health issues, there were financial issues. Suddenly एकदम we actually saw downfall within just a year, I would say. and हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, सब कुछ ठीक है न्यूमरोलॉजिकली, अब इतना अच्छा काफी चल रहा था, अच्छा, suddenly why this downfall? See, I was very disturbed. Even my husband was trying to understand कहाँ पे क्या problem क्या है. Even my partner, जो business partner हमारे थे, तो वो भी wanted to go apart. ऐसा करके हम लोग बोले ठीक है fine, एक अच्छे way में हम लोग की इसको let's settle down everything, then we'll see what we can do next. So पर दिमाग में एक होता है ना, why this happened? I mean, दशा सब सही है, सब कुछ सही है, why this happened? So I understood. बाद में मैंने वापस से अपना observing and सारा मेरा research work मैंने start किया. Then I got introduced to Vastu. ये चीज मुझे I'm really again and again I'm thankful to God that thank God जो भी हुआ, जो भी problems हुए, जो भी struggle, जो भी frustrations, whatever happened for like those years, thank God, I'm really grateful. तो ये सारी चीजें हुई है, इसलिए I looked for solutions and I got introduced to Vastu. And Vastu ने तो मेरा life change कर दिया, literally changed and improved my life to a bigger extent. And I'm so grateful to God. And ये सारी चीजें मुझे समझी. Then वास्तु में जैसे हम टीवी पे देखते हैं, then
टीवी पे देखते, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में देखते, ठीक है, यूट्यूब तभी था 2014-15 की बात कर रही हूँ। सो तभी मैं आई टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, साउथ ईस्ट में रेड कलर लगा दो, यू नो, यहाँ पे येलो कलर लगा दो, यहाँ पे व्हाइट कलर लगा दो। आई नेवर गॉट इनटू, यू नो, कि एक एक्सपर्ट को मिलना चाहिए था मुझे, मेरे दिमाग में वो नहीं था। मुझे चलो लेट्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, विश्वास करने से पहले टू एनी मोडालिटी, पहले मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। पहले मैं खुद में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। देन डेली का कलर थेरेपीज यूज किया। वास्तु में कलर्स भी होते हैं ना, 5 एलिमेंट्स के बेस पे वास्तु होता है। देन आई अंडरस्टूड कि मैं कौन से जोन में हमारा बेडरूम है, यू नो, और कौन से जोन में बाबा का बेडरूम, किचन कौन से जोन में है। तो वैसा वैसा हम लोग ने पूरा इंटीरियर थोड़ा चेंज करने का स्टार्ट किया। वो स्टार्ट किया, थिंग्स गॉट, यू नो, स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। देन मैंने बोला कि ठीक है, यू नो, लेट्स लर्न दिस एंड लेट्स डू इट फॉर आवरसेल्फ। देन आई लर्न। बाद में मैं जब सीखने लगी तभी पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेआउट। इट इज साइंस, इट इज नॉट जस्ट सुपरस्टिशन कि हम लोग को बाहर से हम लोग ये, यू नो, लकी बुद्धा लेके आते हैं, यहाँ पे रखते हैं, या हम लोग गणपति जी को दरवाजे के अंदर, यू नो, अंदर या बाहर, वॉट एवर, ऑल दीज क्वेश्चन। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे। अभी रनिंग हॉर्स लोग लगाते हैं, तो रनिंग हॉर्स कौन से दिशा में लगानी चाहिए, उसके फ्रेम का कलर क्या होना चाहिए, इट्स अ डीप साइंस। मतलब इतनी बारीकी से चीजें हैं ना, एंड आई रियली लव टू लर्न इट, क्योंकि सारी चीज मुझे लॉजिकल लगे, मुझे सारी चीजें लॉजिकल लगी। एंड मुझे ये बात समझा कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, no doubt, you know, everyone has problems, but how to tackle with the problems, और वो problems को कम कैसे किया जाए था ना, तो ये supportive modalities होती है। ये science जो है ये हमें support करती है। Like for example, वास्तु, why वास्तु is really important? Yes, numerology and कुंडली होती है, no doubt, obviously वो तो है ही, क्योंकि हम पैदा ही हुए वो date of birth को लेके, तो वो तो हमारे लाइफ लॉन्ग तक हमारे साथ है ही। तो वास्तु हम क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं कंटिन्यूस, हम अभी तो लॉकडाउन की वजह से तो हम 24/7 घर पे ही रहता है, राइट। अभी रिसेंटली थोड़ा ओपन हुआ है, अदरवाइज 5 months तो वी आर जस्ट एट होम। तो जहाँ पे हम रहते हैं, सो ये जो वास्तु जो 5 एलिमेंट्स है, नो, दिशाएं होती है। पीपल से दैट अभी तक लोगों ने सिर्फ 4 दिशाएं सुनी होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। However, there are around 16 दिशाएं, 16 zones in total होते हैं। Sorry. So 16 zones in total होते हैं। Entrances भी काफी, you know, 32 entrances। There are like, you know, बहुत सारी in depth बातें हैं वास्तु को लेके। एंड कौन से जोन में कौन सा कलर होना चाहिए वो भी होता है। लेकिन there is something called as इंटीरियर वास्तु। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दी हूँ, वास्तु तो चलो हमने, यू नो, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब हमने चलो वास्तु ठीक ठाक कर लिया, बट ये बात नहीं समझी हमने कि अंदर वो कलर्स भी इफेक्ट करता है, एलिमेंट्स भी, जो 3D, जो जैसे मैंने कहा कि, यू नो, रनिंग हॉर्सेस होते हैं, तो रनिंग हॉर्सेस कौन सी जगह पे लगाना चाहिए। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल वो रनिंग हॉर्सेस मैंने तो लगाई है, यू नो, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, अगर वो किसी ने साउथ ईस्ट एरिया में लगाया एंड दरवाजे की तरफ दौड़ रहे घोड़े, तो इट विल गिव अ डिफरेंट इफेक्ट, इट विल गिव अ इल इफेक्ट, राइट। तो ये सब चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाहर से हम लेके आते हैं, लाइक, यू नो, साउंड वाला जो टिंग टिंग, यू नो, विंड चाइम कहते हैं, तो वो लेके आते हैं। वो उसको कौन सी दरवाजे के यहाँ पे लगाना है कि कौन सी जगह पे, प्लस एलिमेंटल शेप्स होते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट, यू नो, वास्तु में होता है। जस्ट लाइक हम साइंस पढ़ते हैं, कौन सा बॉडी एनाटॉमी हम पढ़ते, वैसे ही वास्तु का एक प्रॉपर एक एनाटॉमी होता है। वास्तु पुरुष होता है, वास्तु का पूरी तरह से 45 देवताज होते हैं उसमें, यू नो, 360 डिग्रीज का पूरा एक चक्रा होता है, वास्तु चक्रा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, यू नो। तो और बहुत सारी चीजें मायने रखती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी लिव इन, यू नो, हम लोग रहते हैं वास्तु में। वास जहाँ हम करते हैं उसे वास्तु, यू नो, वास ना, वास वेर वी ड्वेल, वेर वी लिव। सो वो बैलेंस्ड रहे तो हमें सब अच्छे एनर्जीज हमें मिलते हैं, और वी कैन फोकस ऑन द सक्सेस, यू नो, फोकस ऑन आवर हेल्थ, एंड अपना सक्सेस लाइफ में मिल सकता है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दीज थिंग्स, this is what how I got into these modalities, and now this is what I am right now. So talking to you, Alka ji. So yeah, so we got to know a lot about graphology, numerology, and Vastu.
So, हाँ जी. like, can you give me a little bit insight, since, like, if I add up all the dates and year and everything of my birth, so it is 9. And my name has 9 letters in total, like Alka Patel. So nine alphabets, and the sum total of the date of हाँ. birth is also 9. So is that a Okay. good thing? Okay. Tell me your exact, I mean, आपका date of first date of birth क्या है? As in, for 23rd. example, 20, Third. 23rd. That is Yeah. your number 5. Yeah. 2, 3. Okay. 2, 3 Yeah. is equal to number 5. You have to Hmm. total it to a single digit. Okay. Yeah. So 2, 3 is your personality number. Okay. 2, 3. That is totaling to 5. So 5 क्या होता है? बुद्ध. Buddha, you know, Buddha means five number people are very balanced people. They are actually, I would say, luckier, you know, luckier than the other planetary numbers. So congratulations. 5 number is very, see, everyone has talents, but 5 number is more related to finance, and they are very good speakers. Okay. Presenter या marketing में number 5 is too good. Okay. अभी ये तो हुआ आपका personality. Now what is your destiny number? जैसे मूलांक, मूलांक मतलब आपका कोर नंबर है, मूल अंक. तो आपका दैट इज योर पर्सनालिटी नंबर 5, एंड योर डेस्टिनी नंबर इज द टोटल नंबर, दैट कम्स टू 9 एज यू सेड. सो 9 इज मंगल. ओके, मंगल. नाउ अभी टोटल 9 किया है. अभी आपका डेट आपने नाम बताया अलका, पूरा आपने अलका पटेल आपने बताया, राइट? इफ आई एम, या, तो अलका पटेल एक्चुअली ALKA, every letter has a different number. Okay. Every letter has, like, you know, एक Sheldon numerology का एक, you know, we calculate it according to it. तो ALKA इसका टोटल करना रहता है, प्लस पटेल इसका टोटल करना रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी माई नेम विद्या आर हजेडनेस, सो आई टोटल एवरीथिंग वेर एवर आई शोन माई नेम. फॉर एग्जाम्पल, हम तो ये डॉक्यूमेंट्स में तो हम नहीं कर सकते. सो फॉर अलका पटेल, सो आई हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग कि हर लेटर का क्या नंबर है, उसका टोटल क्या आ रहा है. इज इट कनेक्टेड टू योर डेस्टिनी नंबर? अभी फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अबाउट 35, ओके, अबाउट 35, तो उसका डेस्टिनी नंबर बिकम्स अ पर्सनालिटी नंबर, मतलब वो उसका प्रभाव ज्यादा होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ 8 नंबर, मतलब मेरा कोर नंबर है नंबर 4, मेरा डेस्टिनी नंबर है नंबर 8, तो आई माई एज इज अबाउट 35, तो मुझे अभी 8 ज्यादा फेवरेबल है. दैट इज बिकम फेवरेबल फॉर मी, और मैं 8 नंबर के हिसाब से मैं काम करूँ तो मुझे सक्सेस एंड, यू नो, लेस ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे. For example, I would tell something about you, like, you know, most interesting. मुझे भी अच्छा लगेगा आपके बारे में काफी बताने. 9 क्या होता है ना, they love to play with, not play with, but they उन लोग अग्नि काफी, like fire element काफी रहता है उनमें. 9 number, okay, fire element, and this is really a good success number भी होता है ये. और ऐसा देखा जाए तो शास्त्र के हिसाब से, अगर अंक शास्त्र के हिसाब से बोलूं, जैसे सूर्य एक किंग होते हैं, राजा. अभी आप समझिए हाउ लकी यू आर. एक सूर्य होते हैं राजा, नंबर 1, जिसके भी नंबर 1 होते हैं दे आर राजा. नंबर 2 होता है, आई मीन, जो कुंवर होते हैं ना, कुंवर मतलब राजकुमार, दे आर नंबर 5 राजकुमार होते हैं. एंड नंबर 9 होते हैं सेनापति. ओके. सेनापति जो सेना का जो यू नो सुपरविजन करते हैं, उनको रास्ता, यू नो, पूरी तरह से जंग जीतने के लिए तो वही जाते हैं, राजा तो बाद में आते हैं ना. सो दे आर वेरी एक्टिव पीपल. 9 नंबर मंगल, दे आर वेरी एक्टिव पीपल, एंड यस, दे आर ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड, ईगो है. Okay, so I just wanted to make you aware, but yes, you have already balanced it, I am sure of it. However, you are very protective towards your family. Being a 9 number, आपके जो भी close लोग हैं ना, आप उनको protect करने की कोशिश करते हो. You want them to be always good in their life. चाहे आपकी life में कौन सा भी struggle वगैरह चल रहा है, you will not share the struggles with your family and close friends, but उनका अच्छा आप देखना चाहोगे, जो भी जिनसे भी आप प्यार करते हो, राइट? एंड यस, बीइंग अ 5 नंबर, आप यू आर सुपरबली, यू नो, यू आर वेरी गुड विद नंबर्स. फाइनेंस में अगर कहे ना, अगर यू वुड बी ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स, अभी घर पे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स लोगों के साथ आप गए हो, तो बिल जो है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगी, राइट?
आर वेरी क्लियर विथ फाइनेंसेस, आपको कैलकुलेशन सब कुछ समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल मुझे वो समझ में नहीं आएगी या मुझे मतलब इट जस्ट डिपेंड्स आप क्या नंबर लेके पैदा हुए हो. So 5 number are very good. 9 number is like superb. They are always energetic. They always want to look good, like you are really beautiful and you are maintaining it very well. So ये सारी चीजें जो होती है ना, it comes from within, you know, क्योंकि ये आपकी personality है, आपका destiny है, right? ये number आपके ऊपर प्रभाव it has got a very strong influence on a person, you know, आपके ऊपर. So 9 number होता है destiny. So अभी coming back to a name number, so अलका पटेल जो है उसका पूरा मैं आपको definitely after this I'll definitely do that numerology for you. तो एक Sheldon calculation होता है, तो वो सारे numbers को add करके, so if at all अलका पटेल में वो 9 number नहीं आता, 9 is your destiny, right? तो 5 number is for money. So you have to think पहले कि अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसों का सक्सेस चाहिए या मुझे 9 नंबर का प्रभाव चाहिए. 9 इज समथिंग, यू विल गेट मोर एंड मोर कनेक्शंस. राजाओं के साथ कनेक्शन. अभी सेनापति क्या होते हैं, राजाओं के साथ ही उठना बैठना होता है. सो यू विल, इफ यू वांट टू गेट इनटू द कनेक्शन ऑफ सोशली हाई क्लास HNI क्लाइंट्स, या ऐसे आप कनेक्ट होना चाहोगे राजा जो अपने ही इंडस्ट्री में राजा है, तो उनके साथ अगर आपको कनेक्ट होना है तो यू शुड गो विद द 9 वाइब्रेशन. ओके, तो आपका नेम नंबर हम 9 वाइब्रेशन के हिसाब से. However, if you just want to get your finances straight and be successful in your finances, so we can calculate your number, your date of your name, and एक 5 नंबर के हिसाब से हम वो कैलकुलेट करके वो लेके आएंगे वो लेटर्स. सो अगर इफ इन केस वहाँ पे लेटर में कुछ ऐसा हुआ कि 4 आ रहा है टोटल में, we सिंगल डिजिट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, we total it and get it into a single digit. तो वो अगर आता है 4 नंबर पे या मे बी 6 नंबर पे और 7 और एनी अदर नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेटर ऐड करेंगे. ओके, जनरली यू हैव सीन लाइक अजय मे बी वो देवगन का DE से आपने देखा होगा, नोट किया, काफी लोग करते हैं इन फिल्म इंडस्ट्री में, तो काफी लोग करते हैं. So we will just do some changes if required, obviously. तो वो changes करने के बाद वो एक vibration create होगा. Now this vibration, how we are going to use it? हम documents पे तो change नहीं कर सकते, and we cannot just नाम spelling change किया तो we cannot just go and सीधा affidavit कर दो कि ठीक है भाई ये मेरा आपसे नाम. We cannot do that, मम्मी पापा पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा एक कनेक्शन रहता है ना लेटर्स के साथ, नेम के साथ. तो इसका एक ही उपाय ये होता है कि what we can do is, जो अपना फेसबुक, जो the name, अपना नाम कहाँ पे दिखेगा to the world. तो आपका फेसबुक नेम होता है, आपका प्रोफेशनल फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, सो ट्विटर अकाउंट होगा, सो योर ईमेल. सो ये सारी चीजों में ना आप ये न्यू नेम एज इन द स्पेलिंग, ये नेम आप दिखा सकते हो, एंड यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस वाइब्रेशन ऑफ योर नेम नंबर. सो इट वर्क्स दिस वे. सो एक सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत मजेदार है, मतलब इट रियली बेनिफिट्स अ लॉट. क्योंकि हमें एकदम सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर सिग्नेचर की भी बात कहूँ, जस्ट टू एट दिस पॉइंट, लोग कहते हैं कि अरे मैं सिग्नेचर करेक्ट करूंगा या करूंगी तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बैंक में पूरा चेंज करना पड़ेगा, एंड आई हैव गॉट सो मेनी डॉक्यूमेंट्स टू साइन कंपनी में, ये वो. सो दैट्स अ वेरी सिंपल वे. आपको सिग्नेचर है ना कहीं चेंज नहीं करना है, बिकॉज सिग्नेचर अभी तो डिजिटल हो गया है. सो यू डोंट हैव टू जस्ट गो इनटू बैंक एंड साइन करने के लिए आप चेक साइन हार्डली करते हैं, यू जस्ट डू ट्रांसफर्स राइट नाउ. सो आपको एक सिंपल वे में क्या करना है, सिग्नेचर आपको प्रैक्टिस करना है. जस्ट टेक वन A4 साइज पेपर या एक डायरी ले लो, दिन में सिर्फ 50 to 51 टाइम्स और वॉट एवर, मैं तो 108 बार करती हूँ. तो 108 बार एक नया जो सिग्नेचर हम सक्सेस वाला क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन और योर कुंडली, न्यूमरोलॉजी, जो आपको करना है लाइफ में, क्या आपको पाना है, उस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे पावर सिग्नेचर, एंड दैट वी विल जस्ट प्रैक्टिस इट इन अ नोटबुक. दैट्स इट. So and we will practice it till 21 days minimum. एक दिन भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपने माइंड पे वो इम्प्रिंट होना चाहिए. It should get imprinted. एक बार वो इम्प्रिंट हो गया, then it's with you forever, right? But make sure आप पुराना signature मत भूलना. Because it's banking, so you keep that old signature also somewhere.
So and but yes, this new signature really works wonders. मतलब it's amazing. I've seen most of my clients. I feel so obliged. मतलब I also feel so happy to see my clients grow. You know, उन लोग का problem solve होता है, instantly solve होता है, because it's all in the mind. पहली चीज, it's all in the mind. Then you do it, and a combination में बहुत फर्क पड़ता है. Actually, you guys, I mean everyone whoever is watching this, so you all guys should try every modality for a good, successful and less obstacle. I would not say that all your problems will be solved, because it also depends how you react to situations. और ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक बेस मिल जाएगा टू फ्लाई. यू नो, आपको सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, तो एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जो फाउंडेशन होता है वो मिल जाएगा विथ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड यस वास्तु. वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सारी चीज बहुत मायने रखते हैं फॉर ए सक्सेसफुल गुड लाइफ. So just now, as you mentioned that you feel very obliged when your clients say that they have turned more successful, yes, and there are less obstacles now. So you must have a lot of memorable events or unforgettable moments. So would you like to share a few of those? Yes. I would actually thank you, Alka ji, for this question. वैसे मुझे every success of my client now it becomes very memorable. मतलब जब भी client call करते for a feedback, अरे विद्या जी ऐसा हुआ, you know, I'm so happy, it just happened like miraculously. ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया? I always say it's just the science, and आपकी दशाएं अच्छी है. आपकी दशाएं, कुंडली की दशाएं काफी अच्छी हो रही है, तो इसकी वजह से that's the reason I came into your life. और आपके इसमें कोई तो like you know who is supporting you for these problems. So memorable event कहूँ ना, सारे के सारे हैं when clients call me for feedback. And apart from this, I would like to tell you about one instance. ठीक है. I'll also tell you about the zone which was affecting that person. I won't take the name, but because yes, it's my ethics scheme, and yeah, I don't even mention any feedbacks on my Facebook page as well, because it's very private. Okay. So ऐसा हुआ था एक बार कि just एक client मेरे पास आए, and उन्होंने बताया कि उनके लाइफ है ना, they actually want to get divorced. Okay, this was the problem. So और उनके 2 बच्चे भी है. राइट. तो आई फेल्ट सो, मतलब एक ऐसा एक फीलिंग हुआ कि चलो उन दोनों का व्हाटएवर इट इज, पर बच्चों का क्या, अगर उन लोग दोनों डिवोर्स कहते हैं, सी दिस इज माय इंटेंशन वाज गुड फॉर द चिल्ड्रन, यू नो, बच्चों का क्या होगा. तो वो यू नो मेरे पास दोनों आए थे, उन्होंने बोला कि सी वी आर नॉट, यू नो, कुछ तो प्रॉब्लम है एंड वी डोंट फील एनी attraction towards each other, and बाहर मैंने ऐसा we just don't like each other, we have stopped liking each other literally. और शादी के हार्डली कुछ 12 साल भी नहीं हुए थे उनके, तो इट वाज लाइक, और बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, है ना. तो आई सेड ओके ठीक है, लेट मी जस्ट चेक योर डिटेल्स, लेट मी सी वेयर द प्रॉब्लम्स आर. तो मैंने न्यूमरोलॉजी देखा, ये देखा, एंड यस उन लोग काफी कंपैटिबल थे. as per the numerology they were very compatible. So I said चलो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एंड बिगेस्ट थिंग इज लव मैरिज. आई सेड यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यू नो. अगर किसी ने लव मैरिज किया तो कुछ सोच समझ के करते ना. हम लव इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं एंड पेरेंट्स को कन्विंस करना सब कुछ, तो वी आर कमिटेड टू अ लव. सो एक मैंने बोला चलो यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो कहाँ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक. सो बच्चों के कुंडली में भी देखा क्या होता है ना. आई टेल यू वन मोर पॉइंट कि बच्चों में क्या होता है कि वो डेट ऑफ बर्थ में जो न्यूमरोलॉजी का पूरा टोटलिंग है ना, ग्रेड बनता है, तो जो चार्ट बनता है, चार्ट, यू नो, तो वहां पे भी बच्चे लोग भी ये लेके आते हैं. लाइक यू नो, जब बच्चा पैदा होता है वो अपना नसीब खुद लेके आता है. तो अगर उसके नसीब में माता पिता का दोनों का प्यार है तो हमेशा रहेगा. उसके नसीब में अगर माता या सिर्फ पिता का प्यार है तो वो भी रहेगा. सो इधर डिवोर्स या एक सिंगल पेरेंट, यू नो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. एंड जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यू नो, फ्रैंक विथ यू. सो ये सारी चीजें भी होती है. तो मैंने बच्चों का भी देखा, मैंने बोला चलो इन दोनों की कुंडली अच्छी है, इन दोनों को हमेशा से माता पिता का प्यार है. तो मैंने बोला चलो लेट्स सी, घर पे जाते हैं. तो घर पे आई चेक्ड, यू वोंट बिलीव, व्हेन आई एंटर्ड, पहली चीज मुझे यही दिखती कि टॉयलेट कहाँ पे है. एक पता है, देयर आर, लाइक आई टोल्ड यू, 16 जोन्स होते हैं, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं, वैसे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके 16 जोन्स होते हैं. तो देयर इज वन जोन
ओके, विच इज NNW ऐसे एक जोन होता है जो सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन होता है, दैट कपल कपल का जनरली वो जोन, एंड वहाँ पे टॉयलेट आ गया था. Okay. That was the biggest दोष एक्चुअली में. एंड यू वोंट बिलीव, जब से उन्होंने वो नए घर पे जब एंटर किया उन्होंने, तब से उनमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं है. बीइंग अ लव मैरिज, और दोनों अच्छे दिखने वाले, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, दोनों पर्सनालिटी काफी अच्छी है, तो प्रॉब्लम कहाँ है समझ में नहीं आ रहा था ना. तो दैट वाज अ प्रॉब्लम. एंड व्हेन आई हैड टू आस्क देम, सी I tried all the remedies, ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा प्यार आया उनमें, बट ये परमानेंट रेमेडी, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जोन्स में या वास्तु में. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, ये जो प्रॉब्लम है वो उसका कोई क्योर नहीं है. अगर किसी ने वास्तु एक्सपर्ट कोई बोलते हैं कि चलो विल डू अ टेम्परेरी सोल्यूशन, या कोई एक रेमेडी विदाउट तोड़ का हम लोग कर लेंगे, बट इट वुड जस्ट बी अ टेम्परेरी सोल्यूशन. बाद में प्रॉब्लम होना ही है, प्रॉब्लम विल एग्जिस्ट, एंड अपार वो घर चेंज करना ही पड़ेगा. आई ऑलवेज से आई कैन नॉट गिव यू एनी सोल्यूशन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस कि हाँ है नहीं है, you take it or leave it, that's your call, right? So I generally make them aware कि ये चीजें होती है, देखो ये प्रॉब्लम क्यों हुई है ना, ये प्रॉब्लम इसके वजह से हुई है. So you take your call that you want to do a permanent solution or a temporary, आपको चल जाएगा कि वापस after 3-4 years you will again come to me, or you will go to any other person to check कि भाई हम लोग फिर से हम लोग को डिवोर्स के लिए जाना है, या something. So it was तो उन्होंने क्या वहाँ पे एक सोल्यूशन होता है, NNW का एक सोल्यूशन होता है. वी ट्राइड दैट, ओके, हमने वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किया, बट यस नॉर्मल रेमेडी अप्लाई किया, एंड इट एक्चुअली वर्कड. आई मीन दिस वाज द मोस्ट मेमोरेबल टाइम, अलका जी, जब वाइफ ने मुझे फोन किया और कहा कि माय हस्बैंड इज अगेन अगेन बिकम द सेम पर्सन जिससे मैंने प्यार किया था, एंड आई विल नेवर लुक फॉर डिवोर्स विद दिस पर्सन. ये इंसान मुझे कभी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा. आई मीन जो खोया प्यार वापस से जस्ट एक सिंपल सॉल्यूशन करने की वजह से, जस्ट एक एनालिसिस करने की वजह से, जस्ट एक रेमेडी अप्लाई करने की वजह से, यू कुड एक्चुअली सेव अ फैमिली, यू कुड एक्चुअली सेव द चिल्ड्रंस. जो उनका डेस्टिनी होता है ना, उनका प्यार, उनको फ्रस्ट्रेशन, उनको डिप्रेशन ना आ जाए बच्चों को, यू आर एक्चुअली सेविंग अ फैमिली. So this was the most memorable feedback, I would say. Yeah, my client, yeah, karma I did it on, भगवान ने मेरे through ये कर्मा करवाया. I was so obliged and I thank for this opportunity कि मुझसे ये कर्म करवाया भगवान ने, कि एक फैमिली को बचाया. So ये मेरी लाइफ का मैं कभी भूल नहीं सकती ये चीज. So I mean I still feel so overwhelmed with this कि वो feedback याद आ रहा है. They always kept me कि हाँ, they always keep all the things, मुझे birthday wishes, मुझे कभी नहीं भूलते वो लोग. So I feel nice ना, कोई हमें इतना याद रखता है. So this was the most beautiful time. So now that you shared such an amazing incident with us, that you could really save a family, so that clearly shows that you have gone a long way in this journey. Yes. So yes. would you like to mention someone who like inspired you or supported you throughout this journey? Yes, I have. I would say 2 people in my life who has actually got me into this, made me understand that मैं इसी के लिए बनी हूँ. This is my purpose. एक तो है मेरे दादाजी, okay, आजोबा मैं बोलती हूँ, तो वो अभी 10th स्टैंडर्ड में वो स्वर्गवास हुए थे. उनकी वजह से मैं पूजा पाठ उनके साथ ही बैठती थी. वो he was a healer, उन्होंने दीक्षा लिया हुआ था. तो हीलर तो अभी हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, तभी तो हीलर पता नहीं था कैसे. हाँ, ओके, बुखार आ गया, त्रिशूल, वो कुछ मंत्र ऐसे करते थे, एंड यस बुखार उतर गया, भस्म लगाते थे, बुखार उतर गया. इट वाज सो गुड. तो वो चीज है, उनके साथ ही मैं रहा करती थी, उनके साथ ही पूजा पाठ में उनको साथ दिया करती थी, असिस्ट करना. आई यूज्ड टू लाइक टू असिस्ट दादाजी ऐसे. तो वो एक फर्स्ट पर्सन है जिनकी वजह से मैं आई गॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. और उन्होंने, दादी ने और दादाजी ने मुझे मेरा नाम दिया है विद्या, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू. यस सो विद्या मीन्स विजडम, लाइक और स्पिरिचुअली, एंड रियली आई एम ग्रेटफुल टू देम. अभी भी उनको बहुत मैं डेली याद करती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ. एंड यस, सेकंड पर्सन आई वुड
I'm so lucky to have him in my life. That is my husband, Rahul ji. उन्होंने मुझे साध्वी बनने से बचा लिया. I would tell you about एक small story बताती. मैंने मेरे घर पे बोल दिया था, अगर मैं 35 एज के बाद, एज इन 35 एज तक मुझे कोई मेरी गट फीलिंग से ना, मुझे मेरे हिसाब से कोई लड़का नहीं मिला, बिकॉज मैं सबको रिजेक्ट किए जा रही थी. आई डोंट नो व्हाई. सो अगर मुझे मेरे हिसाब के जैसा लड़का नहीं मिला तो मैं साध्वी बनने वाली हूँ. मैं मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहूंगी, हिमालय चली जाऊंगी. लाइक मेरे दादाजी भी हिमालय गए थे ना, तो मैं उनके ही रास्ते पे, मुझे लगा मेरा पर्पस वही है, मैं साध्वी बन जाऊंगी. सो इट वाज सो फनी. पर लकीली 30 एज में ही मुझे हस्बैंड मिले मेरे, और मुझे बचा लिया मतलब उन्होंने मुझे गृहस्थ साध्वी बनाया. गृहस्थ. और उन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया. कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील करा कि ओके, जैसे लाइक मेरे भाई बहनों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया. घर बचपन से मुझे विद्या माता, विद्या बाबा ऐसे करके चिढ़ाया करते थे. लिटरली लिटरली चिढ़ाया करते थे. बट ये चीजें मेरे अभी पूरी तरह से बस गई है मुझ में. तो मेरे हस्बैंड ने जब मुझे कहा कि यू आर एक्चुअली मेंट टू डू ऑल दिस एंड यू आर हियर टू बेनिफिट पीपल, चेंज पीपल्स लाइव्स. तो एक आप एक पर्पस लेके पैदा हुए हो, जस्ट वही रास्ते पे आप चलो. हस्बैंड ने मुझे मुझे बिजनेस से निकाला, बोला कि नहीं, नाउ यू डोंट डू बिजनेस, जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड जस्ट फोकस ऑन यू, योरसेल्फ एंड योर पर्पस. आपको काफी लोगों के पास जाना है, लाइक दिस लाइव आर यू कमिंग इन फ्रंट ऑफ. आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन. पर मुझे ये बात समझा है, इफ आई डोंट कम इन फॉरवर्ड पब्लिकली नहीं आऊं, तो मैं हाउ कैन आई रीच और चेंज मैनी पीपल्स लाइफ. मैं सिर्फ एक लिमिटेशन में रह जाऊंगी. So that's the only reason I'm here right now and got this opportunity, and thank you so much Alka ji, Shiv ji and Trident Communication for calling me here. I'm really obliged actually. So it's our pleasure actually to have you here. Thank you so much Alka ji, and thank you for your time as well, and all the audience who are viewing this, all your love and support. Thank you so much. I would actually want everyone to be happy in their life. Be aware of your strengths, be aware of your weaknesses, develop your strengths and work on your weaknesses, nothing else. आपको सब कुछ मिल जाएगा. Your dream, whatever you have dreamed, मेरा एक मानना है अलका जी, मैं आपको एक सिंपल एक चीज कहती हूँ. अगर आपको एक ड्रीम आया ना, एक गोल आपका आया ना, लाइक मन में आया कि मैं ये करूंगी या ये मैं करूंगा, आई वांट टू अचीव दिस गोल, बी इट रियलिस्टिक, बी इट अनरियलिस्टिक, बी इट एनीथिंग, अगर वो गोल आपके ज़हन में आया, that's unique for you. That's unique for you because, for example, अगर मेरा गोल ये है कि मुझे एक वर्ल्ड रिनॉन्ड वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो दिस गोल विल नॉट बी योर्स. आपका गोल अगर रहेगा या किसी और का ऐसा गोल रहेगा कि आई वांट टू बी द बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर, तो वो गोल उसी का है. और अगर उसके दिमाग में ये गोल आया है, ये ड्रीम क्रिएट हुई है, दैट मीन्स it is meant to be achieved by that person. So believe in your goals, be it realistic, be it unrealistic, work towards it, believe in your dreams. You are going to achieve it very soon. Just be focused and you will achieve. इतना ही कहना है मुझे सबको. So since you said about vibes and vibrations and a place affects you, so situations also affect us, right? Definitely other people's vibrations also affect us. उनका भी aura होता है, there's something called as aura. So good aura, bad aura, everything is there, तो हमें affect करता है. कुछ energy vampires होते हैं, there are like a lot of things जो हमें drained feel होते हैं. किसी से हम बात कर रहे हो तो हमें एकदम बहुत strong feel होता है, बहुत wow, you energetic feel होता है. किसी से हम phone पे बात करते तो you feel drained. अरे अभी तो मुझे मैं सो जाती हूँ, आराम करती हूँ, मुझे आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड राइट नाउ, आई नीड सम सर दुखने लगता है. सो दीज आर ऑल द वाइब्रेशंस दैट अ पर्सन कैरीज विद इन एंड आउटसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो काफी फर्क पड़ता है. In a way, the lockdown has also affected all of us. So how did it affect you? Like in a good way, in a bad way, how did it affect you? Lockdown has been wonderful for me. I mean, I know there are a lot of things happening. I'm very much aware that ये pandemic है,
But in my case, it's been wonderful. And lockdown में मैंने बहुत बहुत achieve किया है. I studied I got all my books outside. सभी मैंने go through किया, refresh किया, and एक better person, you get जब आप पढ़ाई करते हैं ना, knowledge जितना आप gain करोगे, you become a better person. So right now what I am, it just I would say lockdown एक plus point हुआ मेरे लिए. So I actually gone through all the books जो मैंने 2005 से when I started energy healing and numerology सब कुछ, तो मैं सब refresh कर दिया. So it was wonderful. So like since you said that it was really productive and it affected you like really good, so where do you see yourself in the next few years? I would like to reach maximum people across the globe. I want to be obviously it is destined to be, and definitely you will see me at a good level, and this is just my starting, ladder, success ladder का first step, क्योंकि मेरी दशा अभी अच्छी हो रही है. From January, it's going to be like good. So I would definitely like to would see myself 100% at a very good stage. And फिर से हम लोग यही ऐसा ही YouTube पे आएंगे और अपनी success story वापस से हम बात करेंगे. I would love to be a part of this again. That is so nice. And since we know that you have a nice dasha right now and you see that success is coming your way, so what exactly would be a true definition of success for you? Like I said, success is something when you actually become a person you're meant to be. Success हर एक way में, it's not just financial way में, it's about personality way में भी एक person successful होता है, relationship में भी person successful होता है. So everyone has a different definition about success in their life. So मेरे लिए success, अगर I become a better person, I develop my skills which will be beneficial for my clients kahe ya my people around, I will feel myself successful, nothing less. So this is my definition. Okay, and that is actually a very nice definition of success, because at the end when we meet our goals, so that is what success is meant to be. Yes. So yes. how do you plan to give it back to the society? Like, we know you're already doing a lot of things, so in your way, how would it be? Yes, I'm actually I'm coming up with boot camps, like, Vastu ke boot camps, 2 days course, at least if a person knows about the foundation. I'm also writing a book, जो एकदम basic रहेगा, wherein people will understand, every person, अभी जैसे history होता है, तो उसके साथ एक civics करके एक book, एक 20 pages का होता था, तो likewise एक 50 to 100 pages का book, I'm just designing that right now, लिख के तो कब का हो गया, but once it is done, तो this is kind of my give back to the society होगा ये, क्योंकि लोग न्यूमरोलॉजी को या ये कॉम्बिनेशन जो मैं लॉजिकली मैं समझ रही हूँ ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मेरी अंडरस्टैंडिंग से या मेरे जो व्हाटएवर विजडम एंड नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड थ्रू आउट ऑल दीज इयर्स, तो ये मैंने पेन डाउन किया है. तो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू गिव इट टू द पीपल अराउंड इन द सोसाइटी एज वेल एज ये जो चीजें होती है वो मैं सिखा भी रही हूँ. लाइक आई एम एक्चुअली ट्रेनिंग लॉट ऑफ पीपल एंड गुड पीपल. अभी तो स्टूडेंट्स छोटे नहीं है, सारे बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं मेरे. आई एम रियली ऑब्लाइज्ड. सो ये सारा चीजें मैं बूट कैंप की तरह मैं स्टार्ट करना कर दिया है. इनफैक्ट 2 days कोर्स, 3 days कोर्स, सो वेरी पीपल विल एक्चुअली अंडरस्टैंड जो बेसिक होता है फाउंडेशन कोर्स. सो एक बेसिक नॉलेज होना सबको जरूरी है. दिस इज व्हाट आई फील एंड एट अ वेरी लेस अमाउंट आई एम कीपिंग this, so everyone can get benefited out of it. So even one person understands, really nice. Yes, so even one person understands वास्तु, ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इन द फैमिली. एक पर्सन भी जानते हैं ना, तो पूरी फैमिली संवर जाती है. everything becomes good across. So बस इतना ही मेरा कि every family में एक इंसान तो सीखना चाहिए at least. Yeah. No, actually, I am that one person in my entire friend circle who believes a lot in all these things. Yes. So I keep doing this. Ki batao date of birth batao, and I'll just check your zodiac and I'll let you know. Oh wow! So definitely, you should definitely join this course. Yeah, I'll definitely subscribe to the book. Subscribe, yes, definitely. I would love to have a student like you as well. Sure. Lovely student like you. Yeah. Thank you. So as we head towards the end, I would have like 2 questions, maybe one question and a message. So the last question would be, how do you feel to be associated with Trident Communications?
I see this platform as a wonderful platform for all the people around the globe. In fact, kahin se bhi, I like your Shivji. Trident Communication is in UK. I'm living in Mumbai, so it's like, you know, geographically किसी को problem नहीं है. Every person in the globe, whoever is inspirational or deserving to, you know, reach out to people across. So Trident Communication is actually giving a very good opportunity and the platform for people to share their success stories and share their problems, how they develop themselves. And ये सारी चीजें से लोग motivate भी होते हैं. They understand where, you know, problem, and they can reach out to us and Trident Communication definitely. So amazing. I'm really obliged and feel lucky to be associated with you all. Those are some really nice words, because since you are in Mumbai, I'm in Delhi, and it's actually, you know, way away, like very distant geographically, but you're all connected. Yes, we are all connected. Yes. So one last message for our viewers that you would want to leave. Yes, I would actually want everyone to be aware of themselves and look for their purpose in life. It will definitely work good for you. और जब हम age के एक level तक आ जाते, so once you understand your purpose and you work towards it, you feel successful from inside. You know, आप एक अलग इंसान, आपको पता है कि what's your purpose. So seek for your purpose in your life. You will definitely be happy with whatever you have become. लोग कुछ भी कहे, just you be happy with whatever you are and whatever you have become so far. So this is just my message for everyone. Those were some truly inspiring words, and I hope our viewers will definitely listen to it and follow through it. And with that, we come to an end for today's episode. And it was lovely talking to you, Vidya ji. Thanks for joining us today. Same. अलका जी, thank you so much for all your time. अभी इतने रात को हम बात को इतना टाइम आपने दिया, and it's wonderful, and thank you so much all the viewers for watching this. And I hope I have inspired something, you know, कुछ तो चीजें आपको, you know, click हुई होगी या something has happened, so that you can work towards yourself. इतना ही चाहूंगी, that's it. So thank you, Vidya ji, and thank you all the viewers for coming for the show and watching us. Stay tuned with Success Stories for more such exciting interviews and inspiring stories. Great. Thank you, Alka ji. Namaskaram. Thank you.